बड़ी भाईवाली के नाम से नहीं आएंगे। अरे पढ़ना पड़ता है ये तुम्हारे फ्लैट के पास गिराएंगे, मेरे नहीं गिराएंगे। ક્લાસમાં ક્યારે બધા લોકો ક્યાં ચડતા? पता नहीं क्लास पति गई या तो फिर टू डॉट में आ गया है। તેમાં લાગેલા રે? Rewards। अच्छा नहीं बरोबर, ये आपकी जरूरी है। मन तो धक्को मारे रहता है, नहीं से मैं वाइस तो मारे भी छे रिवॉर्ड्स। हाँ it is of 3 hours કેમ તારને તાપવાની હતી? આ તું ઇરાન નો આવે હા જલસા આરામ કરો આરામ કરો તારે આપવાની દોસ્ત આ પ્રી બોર્ડ બોર્ડ 11th માં છે ઠીક છે ચલો વન બાય વન બધા ચાલુ કરી દો રિચ્યુઅલ જે છે some news that you have heard read listen to in last 1 week ચલો એક એક અત્યારે તમને કઈ ગોસિપ પૂછું બોલીવુડ ની હોલીવુડ ની એ બધું ખબર હશે આની પાડો ખબર અત્યારે यार आप પહેરીને આવ્યો તારે એસી બંધ છે જ્યારે નથી પહેરતો તારે એસી ચાલુ રાખે છે ચલો બોલો હા હા કરું કરું 2 મિનિટમાં 2-3 મિનિટમાં I told you guys specifically that it needs to be read in the context of our examination. બરાબર છે અને that's a rumor, it's not confirmed. It is said that he is hospitalized because of alleged poison scenario. 142 F-152 वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में चलता रहता है ये सब मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग तो थोड़ा 150 ऑपोजिशन बाहर रखने का डेमोक्रेसी इसे ही कहते हैं फिर એટલે એનું જે કોન્ટ્રીબ્યુશન હતું ને ચાઇનાનું we read about we talked about હા but નથી આવી પહેલાના ઓકે હા એટલે પછી ત્યાંનું સાંભળેલું રિપીટ નહીં કરવાનું ઓકે હા ઠીક છે Belt and Road Initiative we also read about that last time જો વધારે ચર્ચામાં રહ્યું ને તો આપણે BRI પાછું વાંચીશું because it's a very old thing આ તો એકલી came out of it along with 2 other countries that I said હવે મને યાદ નથી એટલે આપણે ત્યારે એના કોન્ટેક્સ્ટમાં વાંચ્યું છે Sierra Leone and Philippines so yes પછી લાસ્ટ સન્ડે વાંચ્યું હતું એટલે આ સન્ડે રજા રાખી છે હવે આ સન્ડે નહીં એમ તો તને 4 વસ્તુ વધારે આવડવી જોઈએ ભૂલી ગઈ બરાબર છે ઇન શોર્ટ તમે એટલું બી નહીં વાંચ્યું પેપરમાં કે આ વખતે રિપબ્લિક ડે પર ચીફ ગેસ્ટ કોણ આવવાનું છે प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट come on guys આનાથી ખબર પડે છે કે તમારું રીડિંગ શું છે અને છેલ્લે પછી બધું વાંચવા બેસતો એક્ઝામના 1-2 મહિના પહેલા તો કઈ મેળ નહીં પડે It is president of France. His name is president નું નામ નથી ખબર ફ્રાન્સના ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન એવું નામ છે
Who was the recently elect president of Argentina? લાસ્ટ સન્ડે ભણાયું એ પાછળ નહીં જોવાનું ને ગૂગલ નહીં કરવાનું, જાતે બોલ. હા, હાવિયર મિલે. બરાબર છે કે નહીં? પછી IMF નું કઈક નોટિસ આવી હતી કે હવે આપણે તો લાઈક 100% ડેટમાં જતા રહીશું. એવું બધું નહીં કહેવાનું. વિકાસ થઈ રહ્યો છે પૂરેપૂરો. ઇન્ડિયા ઇઝ અ સુપર પાવર, વિશ્વગુરુ, થર્ડ નહીં ફર્સ્ટ લાર્જેસ્ટ ઇકોનોમી ઇન ધ વર્લ્ડ. તો થર્ડ બી નથી માનતો, ફર્સ્ટ. એવું બધું બોલવાનું જ નહીં. વી આર લિવિંગ ઇન ધ ગોલ્ડન એજ ઓફ ઇન્ડિયા સિન્સ 2014. You should enjoy it. ठीक है. उसके पहले we used to live like primitive men. तो એવું નહીં કહેવાનું. કંઈક IMF વખાણ કરી આવ્યું છે, that I can teach. That I can teach. Otherwise, I don't want to say anything which portrays our great country in a bad light. You know, it's scandalous. ચલો ચાલુ કરો. એક ન્યૂઝ બી આજે કોઈએ ઇન શોર્ટ મને ના કીધું. તમને કીધેલું કે લાસ્ટ ટાઈમ વાંચીને આવજો. હા, ઇન્ડિયાનું રિસર્ચ સ્ટેશન બનવાનું છે. એ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ભણ્યું હતું. I give up now. હા 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 હા. लिखो. Supreme Court has extended its ruling on firecracker ban throughout the country. ફટાકડા નહીં ફોડવાના, બરોબર? Initially, it was ruled बहुत time पहले in 2018 case. In 2018, in the case of Arjun Gopal versus Union of India, Arjun Gopal versus Union of India, that firecrackers could be burst on festivals. ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? Firecrackers could be burst between 8 to 10 p.m. on festivals. For just half an hour window. 8 to 10 p.m. 8 to 10 p.m. ठीक है? But what is important that in this case, the region where this law needs to be enforced was restricted to NCR, National Capital Region. It includes some part of Haryana, Rajasthan, UP, and so on. ठीक है?
it was not extended to the entire country. Sir, why only NCR? Because Delhi faces the problem of severe air pollution. Due to that, this was made. But now, during this year, October, the law was extended throughout the country. ठीक है? સર એ like બહુ વધારે પડતો forcefully impose તો નથી થયો ને? એવા તો કયા લો છે જે ઇન્ડિયામાં એકદમ ચકાચક એન્ફોર્સ ફુલ્લી એન્ફોર્સ થાય, બરાબર? બટ કામ થાય રહ્યું જેવું બધું લાગવું જોઈએ, બરાબર? What needs to be not done needs to be shown. કે તમે આગળ when you will start working, you will get all these challenges. Okay, આગળ. Because of this, Firecrackers Manufacturer Association, उन्होंने बोला सर हमारे पेट पे लात क्यों मार दो? बेसिकली यू नो सर व्हाट आर यू डूइंग? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट and they pleaded that this is restriction needs to be lifted up. ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, ये तो नहीं होगा. You cannot use certain amount of chemicals in the crackers. जो हमने 2018 में बोला था, like you can use green crackers, आते हैं आज के जमाने में, ठीक है? Which eliminates certain poisonous chemicals, which whose emissions are injurious to us in the form of pollution. Supreme Court said green वाला बनाओ, barium वाला होगा, it is still not allowed. Firecracker Association ने बोला can we mix both of them? Supreme Court ने बोला नहीं. लिखो. Supreme Court clarified that use of barium and other banned chemicals applies to the entire country. Green crackers बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कौन सा केमिकल से तकलीफ है? याद रखना, बेरियम भाई से, बरोबर? दो चीजें बोली ऑन दीपावली एंड अदर फेस्टिविटीज 8 to 10 टाइमिंग, ठीक है? फोड़ो. फॉर न्यू ईयर एंड क्रिसमस हाफ एन आवर पास्ट 11:55, 11:55 आज से लेके आधा घंटा, जितना भी जलाना है फटाकड़ा जलाओ, ठीक है? टॉक्सिक पिक्चर बना सकते हो, लेकिन बैन क्रैकर्स दैट आर लाउड एंड टॉक्सिक वो भी बंद कर दिया, ठीक है? वो एकदम यू नो देयर आर सम whose audible range is very irritating to you, that is banned. Joint crackers ban, वो भी मैंने आपको बता दिया. Only green crackers and reduce emission or improved crackers. Reduced emission and improved crackers. तो स्टोरी ये ऐसी थी, like there was a father of 2 child, very small little infants. So he said, and we went to the court, that my children right of dignified life, clean life, right to a healthy life is infringed because of this bad air pollution scenario. है कि नहीं? Under Article 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है आपकी आर्टिकल 21, वो पापा ने कहा कि मेरे बच्चों का आर्टिकल 21 क्या है, वायलेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द बैड एयर. व्हाई? बिकॉज दे हैव राइट टू हैव अ गुड लाइफ. एंड देन द प्रोसीडिंग्स वेंट अहेड.
So what is important here that this Article 21 also ensures your right to have a healthy environment, healthy life. Okay, वो पता होना चाहिए. चलो बस. हाँ, और जस्ट अब आपको बताता हूँ लाइक देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स दैट गोस इनटू मेकिंग ऑफ अ क्रैकर्स. एक जो लाइट देता है, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, है कि नहीं, वो उसके केमिकल्स अलग होते हैं. वन दैट क्रिएट्स द ब्लास्ट, पोटेशियम होता है जनरली, नाइट्रेट्स होते हैं. ठीक है. देन सम आर यूज एज एडिसिव्स टू बाइंड द केमिकल्स. ठीक है. तो दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ क्रैकर. याद रखना, लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. फोड़ने का पोटेशियम होता है और नाइट्रेट होता है, ये दोनों बॉस है. ठीक है. और बाकी सारे स्ट्रॉन्शियम वॉन्शियम केमिकल्स है 15-16, वो लिखने की और याद करने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है. ठीक है. याद रखना ये अर्जुन गोपाल. ठीक है भाई साहब को. चलो, सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन कब हुआ था? अभी सुप्रीम कोर्ट की बात कर ही दी है तो पूछ लेते हैं. कभी तो स्टार्ट हुआ होगा हमारा सुप्रीम. चलो होमवर्क लिखो. When was the Supreme Court of India established and start functioning? आपको क्या लगता है कब हुआ होगा? अल्लाह तू वैलो क्या मार दिया आप लोग हैं? आटलू वैलो नहीं आवांगे. थोड़ा लेट तो है. क्लास खत्म हो गई. चलो आगे लिखो. भाई हमारा फाइनेंस डिफेंस मिनिस्टर कौन है? हैं? कौन? हु इज अवर डिफेंस मिनिस्टर भाई? हाँ, राजनाथ सिंह. ठीक है. लिखो, वो लिखो. दूसरा क्वेश्चन लिखो. हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? वेरी गुड. ये पिक्चर देखने का बोला मैंने आप लोगों को, आप लोग इतना इंस्पायर हो गए, मुझे अच्छा लगा. ठीक है. देखो भाई, वो तो गुजर गए ना, ये भाई साहब तो जिंदा हो गए, वरना एयरफोर्स कौन चलाएगा हमारी. ठीक है. एयर चीफ मार्शल कौन है हमारे? लिखो, बी आर चौधरी. भगवान. देखो अभी कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर. आपको लगेगा मार्च के बाद शुरू करूंगा, फिर होगा जून के बाद शुरू करूंगा, और फिर दिसंबर सच में आ जाएगा. ठीक है. तो थोड़ा अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ो भाई. ठीक है. हाँ. ही took the delivery of C-295 plane. C-295 plane. 95 plane as a part of 21,935 करोड़. कितना पैसा गया है? ओनली 21,935 करोड़. मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इन स्पेन. ये डिलीवरी कहाँ पे लिया है हमने प्लेन का? स्पेन में. ठीक है. फिर उसको उड़ा के लेके आएंगे इधर. ठीक है. अपना ही है अब तो. ठीक है. लिख लिया इतना. आगे लिखो. इट इज अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. C-295 क्या है? कि फाइटर प्लेन है? नहीं. कैसा है ये? ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. ठीक है.
एंड इट लैंडेड ऑन वडोदरा एयरबेस इन गुजरात। कहां पे लैंड हुआ? वडोदरा एयरबेस इन गुजरात। आफ्टर एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, आफ्टर एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, ये क्या हो गया? कंपनी का नाम। वो मैन्युफैक्चर्ड C295 और उन्होंने डिलीवरी कहां पे दी? सेविल, विच इज लोकेटेड इन स्पेन। क्या डिलीवरी आई थी? सेविल, जो अपना एयर मार्शल गया, क्या गया? सेविल। सेविल क्या है? वो स्पेन। एयर डिलीवरी ली थी, પછી मैं कीधु ने उड़ाइन लाव से क्या लाया? वडोदरा, राइट? आगे, the first squadron will be raised in Vadodara. The first squadron basically means a group of aircraft, will be raised in Vadodara. This is very important aircraft for India. Why? Because now our demands for defense has changed, especially along the Indo-Chinese border. Secondly, the Avro aircraft, which we inducted in 1960s and 70s, is aged. So we need to replace that with C295. Avro aircraft replacement and logistics requirement along the Indo-China border. Demands change by the government, like that context. Demand change. ठीक है सर, मैसेज ओके, यहाँ पे होगा, यहाँ से ये बंद कर दो सर। ये बंद कर, आगे भी काम किया ऐसा। हाँ, लॉजिस्टिक्स कैसे चेंज होती है? जो जहाँ जितनी मस्ती करता है उस प्रमाण से, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू चेंज द अकॉर्डिंग टू, ऑफ कोर्स इंक्रीज। चाइनीज आर सो एग्रेसिव, ऐसा है, देखने को नहीं मिलता वो बात अलग है, नहीं दिखता ना न्यूज में, तो हमें नहीं मिलता है ये सारी चीजें। बट देन चाइनीज आर वेरी एग्रेसिव। फॉर एन इंस्टेंस, when the Supreme Court gave the order on Jammu and Kashmir and Ladakh, on the same day the Chinese ministry said, they also issued a statement like, we are not changing our position on Ladakh, it is according to them. I have to clear so many things now, खौफ का एनवायरमेंट ज्यादा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम दिस इज लाइक लद्दाख इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर जिनजियांग प्रोविंस। ओके, सो आपके कहने से ये आपका हो जाता है, वो हम नहीं मानते। जैसे हम क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के कहने से पीओ के उनका नहीं हो जाता, ठीक है। ऐसा वाला, तो कबड्डी कबड्डी खेलते रहते हैं हम, ठीक है। सो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। एंड एज फार एज डिफेंस कैपेबिलिटीज आर कंसर्न, दे हैव टू बी इंक्रीज, ठीक है। स्कूल बने ना बने, हथियार आने चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते। जो चाइनीज आर मेकिंग, दे हैव लाइक व्हाट 100-200 नंबर ऑफ शिप, उतने तो शिप है, ठीक है। उससे ज्यादा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होते हैं, देयर ओन कैपेबिलिटीज। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके नहीं, खुद का है उनका, ठीक है। लेकिन अपने भी बहुत डेवलप है, विकास है, मतलब सब कुछ ठीक ही है, ठीक है। वी डू इट। सो डिफेंस कैपेबिलिटीज तो बढ़ानी ही पड़ती है, यू हैव टू डू इट, बिकॉज यू हैव कंटेस्टेड नेबर्स। ब्रिटेन और फ्रांस जैसा तो है नहीं, हम साथ साथ है, ठीक है। अगर ये कंपटीशन ना होता इस रीजन में, तो ऑल ऑफ दिस मनी कुड हैव यूटिलाइज्ड फॉर बेटर पर्पस। अपने को तो इधर पाकिस्तान भी, ऊपर चाइना, ठीक है। सो वी हैव दिस इश्यूज।
चलो आगे। तो ત્યાં જ ઘર લેવાનું વિચાર્યું. I will tell my father he needs to invest there. It's a good place to live now in Gujarat. The first aircraft will be formally inducted in Hindon Air Base. Hindon Air Base. फर्स्ट स्क्वाड्रन कहां पे होगी? बड़ोड़ा में. लेकिन फर्स्ट एयरक्राफ्ट कहां पे इंडक्ट करेंगे? हिंडन एयरबेस. हिंडन कहां पे है? यूपी में है. एंड इट वाज शोकेस्ड इन एयरफोर्स डे परेड. एयरफोर्स डे परेड held in Prayagraj, UP. On October 8. તમે બંને કઈ દુનિયામાં ખોવાયેલા છો? મલ્ટીવર્સમાં તો નથી ને? તું અને તું. Which is the 91st anniversary of Indian Air Force. जो स्क्वाड्रन होगा इसका, उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 एयरक्राफ्ट होंगे. ठीक है. We are going to buy total 56 C295 from Airbus. और इंडिया में इनका पार्टनर कौन है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड. ऐसा पूरा लिखना, सिर्फ टाटा मत लिखना. टाटा इज अ ग्रुप. टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड. एडवांस सिस्टम लिमिटेड. अभी देखो कितने हैं टोटल? 56. इसमें से 16 हम डायरेक्ट उड़ा के लेके आएंगे यूरोप से. एयरबस इज अ यूरोपियन कंपनी. तो बाकी के 40 क्या करेंगे? तो जैसा कि मैंने बताया, टाटा विल असेंबल द एयरक्राफ्ट इन इट्स फैसिलिटी इन वडोदरा. समझ गए? 16 तो हम रेडीमेड लेके आएंगे, बाकी 40 के पार्ट्स आएंगे. एक पहिया आया, दूसरा पहिया आया, फिर इधर उसको हम जोड़ेंगे. ठीक है. और वो जोड़ने का काम कौन करेगा? टाटा वाला. ठीक है, लिख लो. अगस्त 2025 तक 16 के 16 यहाँ पे आ जाएंगे जो यूरोप से आने वाले हैं. आप सिर्फ टाइमलाइन देखो, आपको बहुत मजा आएगा. जो वडोदरा वाला है, फर्स्ट मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया मतलब आप समझ रहे हो? दिस इज नॉट मेक इन इंडिया, इट इज असेंबल्ड. लेकिन आपको अच्छा लगेगा, हमारे दिल को अच्छा लगता है. आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया. ठीक है. हाँ. सो वो जोड़ने के बाद भी सबसे पहला प्लेन कब बनेगा? सितंबर 2026 में पहला. 40 में से पहला कब बनेगा? सितंबर 2026. मस्त है, सब मस्त है. एंड द रिमेनिंग बाय अगस्त 2031. जो बाकी के 39 प्लेन्स है वो कब तक आएंगे? अगस्त 2031. ठीक है. याद रखने की जरूरत है. તમે તમારો ક્વેશ્ચન જોઈ લો ક્લાઇકના, તમને ઓટોમેટિક ખબર પડી જશે. હા તો નહીં, એટલે જ હું કહું છું. સી, they will ask, તમારે કોઈ એવા ક્વેશ્ચન હોય, or in IELTS for an example, they will just ask you Airbus कहाँ की कंपनी है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा. In the same way, if you are appearing for CLAT, they will ask all these little details. ठीक है. So you should read any news from the examination perspective that you are appearing for. ठीक है. चलो, एयरबस समझी गया. आगे लखो भाई.
ચીફ ઇલેક્શન કમિશનર વાળું તો થઈ ગયું. અત્યારે આમ જોવા જઈએ ને તો ઘણા સરસ ટોપિક હતા જેની ઉપરથી they could have asked important questions, but જાણે. चलो वापस से वो टॉपिक पढ़ते हैं, भारत और वो इंडिया वाला सीन. ठीक है, अभी हर जगह भारत भारत बहुत चल रहा है, यू नो इट्स ट्रेंड है कि नहीं. मैं आई वेंट टू दैट दिस वर्ल्ड कप देखने गया था. मैं तो आराम से बैठा हुआ, तो वो इतने सारे झंडे अचानक से जोरदार भारत भारत भारत. मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशन जोरदार है इनका. हम तो अभी तक क्या बोलते थे, इंडिया इंडिया इंडिया. ठीक है, कोई बात नहीं. वेर इज दिस रिटन? भारत का नामकरण कौन से आर्टिकल में हुआ है? अब हमारे संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा? कहाँ पे लिखा है? See, these things are already taught in this class. आप अभी बहुत फ्री हो ऐसा मैं समझ सकता हूँ. Why? Because you are not in 12th yet. तो थोड़ा पीछे का देखो, आपका बेस अच्छा बनेगा. Where it is written, very good ध्रुव. देखो आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने हैं? मोर देन 435 आर्टिकल्स वी हैव. उसमें सबसे पहले में ही नामकरण किया है. और देखो how the narratives are changed in India that you can witness. For an example, my parents went to a Gujarati medium school. वो लोग जिंदगी पर आज तक क्या कहते हैं? भारत. Why? Because in Gujarati and Hindi you will read it is called as Bharat. I went to a English medium school, so what I am saying, was there a need of any controversy? But just to play with your little mind, these things are created. Issue कहाँ पे था? है था कहीं पे? If you will go to Gujarati medium school, you will say Bharat. Am I right or wrong? You go to English medium school, you will say India. है कि नहीं? ऋषिकेश जाओ घूमने तो ताज की 2 प्रॉपर्टी है, एक का नाम है गंगा और एक में लिखा है गंजिस. एक अपना देसी है, एक थोड़ा विदेशी है. दूसरी बात, it is perceived that India is a foreign name. It is not. India is used since last 2000 years or even more than that. India नाम भी ऐसा नहीं है कि ये ब्रिटिशर्स आके देखे चले गए, नहीं. India is known as India since last 2000 years or even more than that. There is a book. आता हूँ, सब कुछ आता हूँ, सारे लंबा लंबा. मैं आपको स्टोरी इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपके दिमाग में याद रहे. देयर इज अ ग्रीक पर्सन जिसने पूरा बुक ही लिखा है. नाम क्या है बुक का? इंडिका. व्हाई? बिकॉज अलग अलग लोग किसी जगह को अलग अलग तरीके से कहेंगे. ठीक है, अभी प्रयागराज आज आया, उसके पहले कुछ और था, उसके पहले प्रयागराज था. लेकिन जो जिस समय में आता जाता रहता है वो उस समय से उस जगह को बोलता रहेगा, है कि नहीं? You meet any Parsi fellow, because I know so many of them, so they will still say Mumbai ko Bombay, because that's how it is given to them in their families. They will still say Calcutta, Calcutta. ठीक है, that is how it is. अभी इसका स्टोरी लिखो, बहुत सारे नाम पढ़ेंगे अभी हम. और आर्टिकल 1 में इट इज लीगली सेड दैट इंडिया दैट इज भारत. अभी किस लोगों को इसमें भी पेट में दुखता है दैट भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए. ठीक है, सो ये कबड्डी कबड्डी ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे है. ठीक है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर ना हो चलेगा, लेकिन ये इंडिया भारत इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आगे लिखो. देखो द रूट्स ऑफ, सबसे पहले स्टोरी बना रहा हूं. देखो इंडिया इन द इंडस वैली टाइम, दिस रीजन, कंट्री था नहीं था इसकी डिबेट में मुझे नहीं जाना है. दिस रीजन वाज नोन एज मेलहुआ, MELHUA.
ये भाई हमें कैसे पता चला? तो जब इंडस वैली वाज अ सिविलाइजेशन, इन द सेम वे मेसोपोटामिया इज आल्सो सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो जो मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स मिले हैं उसमें जो लोग वो वेस्ट में ईस्ट में जिसके साथ ट्रेड करते थे, कौन आता है हम लोग, वो रीजन का नाम उन्होंने क्या रखा था? मेलुआ। ठीक है। फिर भारत एंड भारतवर्ष, ये क्या है, पुराण जो हमारे हैं विच वॉज रिटन इन गुप्ता पीरियड 300-400 एडी की बात करें, उसमें ऐसा लिखा गया है दैट फ्रॉम द थ्री सीज टू द माउंटेन्स ऑफ हिमालय द लैंड मास इज नोन एज भारत और भारत वर्ष। फिर अभी रामायण के टाइम पे जाए तो उसे क्या कहते थे? आर्यव्रत। सुना है ना ये सब? आप लोगों ने सुना तो होगा कम से कम, आर्यव्रत। ठीक है। पर्शियंस आए तो वो लोग सिंध, इंडस को सिंधु नदी कहते थे, स को वो लोग क्या बोलते थे? एच। तो सिंध से क्या होगा? हिंद, हिंदुस्तान, हिंद। रिलीजन से उसका कोई लेना देना नहीं, हिंदू रिलीजन से इस वर्ड का कोई लेना देना नहीं है। सिंध जो रिवर थी सिंधु, उसको वो लोग क्या बोलते थे? एच, एस, एच। तो क्या बन गया? हिंद, हिंदुस्तान। कौन करता है ये सब? पर्शियंस। ये नाम कहां से आया? पर्शियंस। सबका बोल दिया मैं, ये वाला कौन लेके आया? पर्शियंस। तो जो ग्रीक्स आए तो सिंधु को वो लोग क्या बोलते थे? इंडस। तो उससे क्या बन गया? धीरे धीरे हिंद से आके आगे इंडिया। हिंद को बोला इंडस, इंडिया। ठीक है। और देखो, नथिंग ऑफ दिस इज कॉन्क्रीट। ठीक है, ये जितने भी मैंने वर्ड्स बोला है ना, ये सब डिबेट्स है कि इसने ऐसा बोला था, नहीं उसने ट्रांसलेट करके ऐसा बोला था। जिनको स्टोरी बनानी होती है वो बनाते हैं इसमें से। ठीक है। लोग कहते हैं हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू रीड, ऐसा होते हैं कुछ लोग। मैंने बोला पढ़ना ही नहीं चाहिए, सब कुछ जला देना चाहिए। बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटिंग हिस्ट्री, यू आर मेकिंग हिस्ट्री। समझ रहे हो? आप अपनी सोच के हिसाब से अपना रास्ता यू सिलेक्ट लाइक दिस एंड देन यू मेक अ हिस्ट्री विच सूट्स यू, your biasness, your perspectives. Anybody, it is applied to anybody. If you write, you will write in a way that justifies your point of view. In this, you are not writing about history, you are making history. ठीक है। मतलब अभी you cannot question anyone's wisdom at that particular point of time. You can make theories about it. You cannot say actual reason कि इसने ऐसा क्यों किया होगा. That is something like that. ठीक है, चलो आगे लिखो। हाँ, ये भारत का लिखो। भारत क्यों है? बिकॉज एक राजा था किंग भारत करके। ठीक है। ही वॉज द सन ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला, महाभारत के टाइम में। ठीक है। द सन ऑफ किंग दुष्यंत एंड क्वीन शकुंतला। ठीक है। सब ये सिंधु नदी का खेल है। देखो, इंडस इज द मेन क्वीन ईयर। ठीक है। पर्शियंस उस इंडस को क्या, मतलब इंडस कौन बुलाते थे? ग्रीक्स। हम लोग क्या बुलाते संस्कृत में उसको? संस्कृत में हम उसको क्या बुलाते हैं? सिंधु। है कि नहीं? पर्शियंस है उसको वो क्या बुलाते हैं? हिंद, हिंद। ठीक है। इन दैट वे। फिर आगे लिखो। हाँ, पर्शियन इक्विवेलेंट ऑफ हिंदू, सिंधु। मतलब हिंदू क्या है? पर्शियन इक्विवेलेंट ऑफ सिंधु। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। और सबसे अच्छी बात है जो, लेकिन ये तो वेरी कॉमन नॉलेज है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो लोग आज करते हैं, मजा आता है लोगों को। दैट वाज अ प्रोमिनेंट टर्मिनोलॉजी टू डिस्क्राइब दिस कंट्री ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल्स। ठीक है, वो लिख लो।
चलो ये हो गया. Every prominent names history is clear. Now let's come to the Constituent Assembly. देखो डिबेट्स होते थे हर एक चीज में, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आज की तरह नहीं पूरा ऑपोजिशन बाहर बैठता है और आराम से लॉ पास हो रहा है, ऐसा नहीं होता था. सब लोग बैठ के मस्त आराम से बोलने का मौका मिलता था, बातें होती थी. और क्योंकि क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट, बहुत लंबा सेशन चलते थे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और पढ़े बिढ़े लोग थे, स्टोरी बोरी ज्यादा नहीं होती थी, काम की बात करो और फिर भागो. ठीक है. सो देयर वर डिफरेंट ओपिनियंस विच वर प्लेस्ड. Some said that nahi, we should name Bharat. Why? Because India is basically means क्या, भारत. ठीक है. फिर कोई बोले नहीं ये इंडिया तो होना ही नहीं चाहिए. किसी ने क्या बोला, दोनों रखते हैं लेकिन भारत दैट इज इंडिया दैट वे. किसी ने बोला नहीं, इंडिया तो होना ही नहीं चाहिए. वाई? बिकॉज इट्स अ फॉरेन नेम इम्पोज्ड ऑन अस वगैरह वगैरह. ठीक है, चलो तो वो वाली बात है. लेकिन फिर एट द एंड क्या डिसाइड किया कि हम क्या रखेंगे, इंडिया दैट इज भारत. ठीक है. और ये अडॉप्ट कब हुआ ये जान लिखना जरूरी है. प्लीज राइट डाउन द ड्राफ्ट आर्टिकल. इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. क्या है पूरा आर्टिकल 1? इंडिया दैट इज भारत दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट. ठीक है. Was adopted by the Constituent Assembly on September 18, 1949. September 18, 1949. आर्टिकल 1 में ये लिखा है. दूसरी चीज क्या लिखी है सुन लो, कि कौन से स्टेट्स है, उनकी टेरिटरी क्या है, ये लिखना है अभी. दैट इज मेंशन इन आर्टिकल, सॉरी, शेड्यूल 1. टोटल 12 शेड्यूल्स है कि नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. तो शेड्यूल 1 में क्या लिखा होगा, स्टेट्स एंड देयर टेरिटरी. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी पीआईएल को ऑलरेडी 2 बार इग्नोर कर दिया है, टाटा बाय बाय बोल दिया है. एक बार आई थी 2015 में कि भारत कर लो, इंडिया हटा दो. सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं चलेगा. वापस 2022 में ये बात आई थी दैट वी नीड टू चेंज द नेम. तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि चेंज करने का क्या जरूरत है, अंदर देखो दोनों लिखा है. ठीक है. आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप यूज करो. ठीक है. I just wonder this always. I am like, if anything foreign is needs to be discarded, anything foreign. That's the perspective, right? That this name should be discarded, this practice should be discarded, this should be changed. Then what will happen to us as in people of Indian origin if tomorrow Britain decides to do that? That नहीं नहीं, हमारा जो था हमको सब कुछ वही वापस चाहिए, as in that territory, not somewhere else, not in an imperialistic perspective. But what if they will say कि नहीं भाई यार ये तो नहीं चलेगा, हमें हमारा सब कुछ ओरिजिनल चाहिए वापस. दैट ऑल वाइट पीपल शुड सिट इन द पार्लियामेंट. तो चलेगा. तो ओरिजिनल चीजें तो सबको पसंद होती है ना. एवरीबडी, आई ऑलवेज थिंक लाइक दैट. But if you have been to Britain, then there are so many places which are named on Mahatma Gandhi, on Patel Avenue, etc. Avenue. अगर वो लोग डिसाइड कर दे कि नहीं नहीं इधर तो सेंट ऑगस्टिन लिखना है हमको, चलेगा, अच्छा लगता है, सब चलता है. इजंट इट? जो है वो है, बात खत्म. ठीक है. चलो आगे. चलो लास्ट एक मेजर कंट्री ने अपना नेम चेंज किया हो, उसका कुछ आइडिया है आपको? हम गुजराती वहां भर भर के घूमने जाते हैं. इट्स अ मीटिंग पॉइंट बिटवीन यूरोप एंड एशिया. चलो बस. हाँ, टर्की का क्या कर दिया, देख लो 2022. टर्की का क्या कर दिया है, तुर्की. लिखो नेक्स्ट.
Indian cities in UNESCO. Indian cities in UNESCO. Creative cities network. देखो ये यूनेस्को का हमने ITCH पढ़ा था, कौन सा ऐड हुआ था ITCH में? सनेडो। सनेडो नहीं हुआ था, गरबा हुआ, ठीक है। सनेडो इज अ फोक सॉन्ग, इट्स नॉट गरबा, ठीक है। हाँ, कौन सा नंबर का था वो? 15, 16, 17, 18, कौन से नंबर का? लिखो, होमवर्क लिखो। कुछ पढ़ के नहीं आते हो, पढ़ाई इतना, गरबा को इग्नोर कर देते हो। आपको गरबा खेलना बंद कर देना चाहिए इस साल से। 15 का मैंने सवाल पूछा है, तू मेरे को सवाल क्यों पूछ रहा है? ठीक है, तो ITCH के बारे में हमने पढ़ा था। In the same way, this is a list again given by UNESCO. All these things are done to recognize any particular important characteristics of any city. Creative cities network. कोई city is very famous for its creativeness, anything, arts, gastronomy, whatever. तो यूनेस्को उसको क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। लिखो, रिसेंटली कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पे है? क्या बात कर रहे हैं? आय माय गॉड, डैंडी डम्स का चॉकलेट थोड़ा ही खाना है बस। कोझिकोड इज इन केरला, ठीक है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज सिटी ऑफ लिटरेचर। क्या रिकॉग्नाइज किया है? सिटी ऑफ लिटरेचर। ग्वालियर कहाँ पे है? माणिक चौक मत बोल। हाँ, वेरी गुड, यूपी। यूपी नहीं, नहीं यूपी, हाँ, मध्य प्रदेश, ठीक है। ग्वालियर इन MP फॉर सिटी ऑफ म्यूजिक। नाउ अंडरस्टैंड, आज से नहीं, पिछले 500 साल से देयर इज अ घराना इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नोन एज ग्वालियर घराना। सो बिकॉज ऑफ द रिच ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक दैट ग्वालियर हैज, उसको क्या मिला है? सिटी ऑफ म्यूजिक, ठीक है। ये तानसेन बानसेन का नाम सुना है? ये सब कहाँ से थे बेसिकली? तानसेन ही, हाँ तानसेन, बैजू बावरा गुजरात से था। हाँ, ये तानसेन MP में ही बैठता था, ग्वालियर ग्वालियर, ठीक है। और दो तरह के ट्रेडिशनल म्यूजिक इंडिया में है, पता है ना? हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नाटिक म्यूजिक। उसे क्या कहते हैं? क्लासिकल म्यूजिक। उसमें दो है मेन डिवीजन। हिंदुस्तानी म्यूजिक मतलब नॉर्थ वाले पार्टी करते हैं, पार्टी मतलब नॉर्थ में, और साउथ के 4 स्टेट्स में, अभी 5, वहां पे कौन सा चलता है? कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है। ग्वालियर घराना इज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी म्यूजिक। ग्वालियर घराना इज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है। और कौन कौन है लिस्ट में? लिखो। ओपनिंग बैट्समैन कौन था 2015 में? वाराणसी। क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, अगेन बनारस घराना, ठीक है, पार्ट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। फिर जयपुर में क्या फेमस है? क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। एंड चेन्नई, क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक 2015। 2015 में ये 3, फिर 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 18, 19। मुंबई 2019। मुंबई किसके लिए फेमस है? बॉलीवुड, सो सिटी ऑफ फिल्म्स। एंड हैदराबाद, क्या फेमस है हैदराबाद में? अरे बिरयानी, दैट मीन्स गैस्ट्रोनॉमी, खाना पीना। आप लोगों ने क्या बोला? हैदराबाद इज नॉट फेमस फॉर IT, इट्स बैंगलोर एक्चुअली।
હા એ બધું તો છે અને ખાવાની વધારે મજા આવે બરાબર હૈદરાબાદ પતી ગયું પછી શ્રીનગર ક્રાફ્ટ એન્ડ ફોકાર્ટ્સ 2021 હૈદરાબાદ ને મુંબઈ 2019 ફરી 2021 માં શ્રીનગર અને પછી આ લેટેસ્ટ મેં તમને કીધું એ કોણ છે લેટેસ્ટમાં ये लोग क्या गरबा खेल रहे हैं भाई खोजी कोड़े ओके चलो आगे केरला का कैपिटल क्या है भाई हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड एमपी कौन है उधर का आप सब लोग जानते हो बोलो इमेजिन हाँ शशि थरूर ठीक है चलो नेक्स्ट लिखो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 ये आपको क्या लगता है क्लाइमेट चेंज में रियल है कि नहीं है व्हाट इज योर ओपिनियन कि अभी तक फील नहीं किया तो फिर अभी तक कोई ओपिनियन नहीं बनाया हमने है कि नहीं है रियल चलो लिखो since 2005 CCPI means this index compares the climate protection performance of countries annually क्या करता है कंपैरिजन किसका क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस कि एक कंट्री क्या क्या स्टेप्स ले रही है टू टैकल क्लाइमेट चेंज एनुअली मतलब ये रिपोर्ट हर साल आता है ठीक है ये जो रिपोर्ट है सीसीपीआई was published along with COP28 in दुबई अभी COP28 चल रहा था कि नहीं चल रहा था ठीक है टोटल 63 कंट्रीज एंड पूरा यूरोपियन यूनियन का इवेल्युएशन हुआ ठीक है this report covers like 90% of the global greenhouse gas emissions इंडिया इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली हमने बहुत बढ़िया तरक्की की है एंड वी आर रैंक्ड 7 विच इज गुड पहले कौन सा था 8 अब कौन सा है 7 और हमारा स्कोर कितना है 70.25 पिछले साल कौन सा था 67.35 35 देखो इसमें टोटल 6 कैटेगरी है रैंकिंग की वेरी हाई उस हिसाब से और फिर नॉट इवेल्युएटेड ये टॉप मोस्ट एंड डाउन मोस्ट टोटल कितने अच्छे तो वेरी हाई में कोई है ही नहीं ठीक है दैट मीन्स नो एनी कंट्री इज वर्किंग वेरी सिंसियरली और वेरी हार्ड इनफ दैट दे कैन बी प्लेस इन वेरी हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी ठीक है ये लिख लो वेरी हाई में कोई नहीं बैठा 3 के बाद चौथा पोजीशन पे कौन बैठा है डेनमार्क मतलब डेनमार्क सबसे बेहतर काम कर रहा है बट नॉट गुड इनफ टू बी प्लेस्ड इन वेरी हाई और सबसे लास्ट में कौन बैठा है सऊदी अरेबिया ठीक है
India at 7th rank, effectively secure 4th rank. ठीक है, G20 में कितनी कंट्रीज बैठेगी? 20 अभी तक। उसमें जो 15 है, आउट ऑफ दिस 15 कंट्रीज आर इन द कैटेगरी ऑफ लो एंड वेरी लो। जस्ट इंडिया इज एट 7th, जर्मनी 14 पे है, यूरोपियन यूनियन 16 पे है। इंडिया 7th। और एक एस्ट्रिक बात करके इंपॉर्टेंट लिख रहा, यूक्रेन वॉज नॉट इवेल्युएटेड। वाई? उधर तो पार्टी चल रही है, तो फिर अभी इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका तो ठेका अमेरिका ने ले रखा है ना। ठीक है, इजराइल इज अमेरिका, अमेरिका इज इजराइल। ठीक है। ठीक है, चलो। कभी अरेबियन पेनिनसुला देखा है मैप में? एक्चुअल नहीं गए हो वो बात अलग है। अरेबियन पेनिनसुला देखा है? क्या क्या आता है बताओ जरा। अभी मैं इंडिया से निकलूं बोट लेके, तो सबसे पहले क्या आएगा? रेड सी आएगा या मेडिटेरियन सी आएगा? मेडिटेरियन तो नहीं आएगा, वो यूरोप में आएगा, ऊपर बैठा है। ठीक है, देखो, रेड सी आता है सबसे पहले। मैं निकला गड्डी लेके, नहीं बोट लेके, तो सबसे पहले पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान का कोस्ट आएगा। उसके बाजू में ईरान का कोस्ट आएगा, है कि नहीं? फिर रेड सी आता है बीच में। क्या आता है? रेड सी। रेड सी क्रॉस करके उस साइड जाऊं तो पूरा पेनिनसुला का लैंडमार्क शुरू होता है। सबसे पहले ओमान आएगा, फिर यमन आएगा, और ओमान और यमन के ऊपर क्या आता है? सऊदी अरेबिया। यस और नो? और फिर उसके आगे जब जाऊं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आता है, वो वाला रीजन। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी के बीच में जो पूरा एरिया है उसे क्या कहते हैं? अरेबियन पेनिनसुला। और ऊपर की बस सारी कंट्रीज भी आती है उसमें, लेकिन अभी मुझे इस पे फोकस करना है। नाउ इफ यू चोक रेड सी एंड हॉर्मुज स्फीयर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, more than 70 to 80% of oil is stopped। ठीक है, पता चल गया? these आर वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, चोक पॉइंट्स कहते हैं इन द इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज। चोक पॉइंट्स, जैसे इफ इंडिया वांट्स टू चोक चाइना, वी कैन पुट ए ब्लॉकेड ऑन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अंडमान निकोबार से नजदीक आता है हमको। ठीक है, विद आर वेरी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज राइट नाउ यमन में देयर इज अ सिविल वॉर। ठीक है, यमन की तरफ कोई देखता भी नहीं। यमन में सालों से बहुत हालात खराब है। दे आर लेड बाय अ ग्रुप, आर्म ग्रुप, वॉट एवर यू वांट टू से, विच इज ग्रुप कॉल इज कॉल्ड हौथी रिबल्स। क्या कहता है मैंने उन्हें? HOUTHI, हौथी रिबल्स। अभी आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा, मैं ऐसा देखता रहता हूँ, तो मुझे बताएं। So recently they hijacked a whole ship and they filmed it, like literally they came in a helicopter, landed on the deck, they took the whole crew down। ठीक है, इंडियंस भी थे उसमें बेसिकली। ठीक है, yes, so this Yemenis or Houthi thought that these chaps are from Israel and the ship belongs to Israel, but then Israel ने बोला कि नहीं नहीं, हमारा शिप है ही नहीं, ये तो यूके का शिप है, रजिस्टर्ड इन जापान है, और क्रू कोई अलग है। क्रू मतलब जो ये शिप चलाता है, तो हमारा कोई लेना देना नहीं, आपको जो मस्ती करना है वो करो। ठीक है, बट देन हमारे जो बड़े पापा है पूरे देश के, कौन होगा? यूएस। तो उनको क्या है, मशीन गन बनाते हैं हम सब, टैंक बैंक बनाता है, तो कहीं पे तो सेल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यूज तो करना पड़ेगा। इमेजिन यूएस प्रोड्यूसिंग मास वेपन्स, जैसे हम यहाँ पे मास प्रोडक्शन करते हैं केसर कैरी का, शुगर का, वो लोग उसका करते हैं। ठीक है, रियलिटी है। जब भी आप, इफ यू ट्रैवल टू यूएस, तो आप कुछ स्टेट्स में बताओ मैं आपको, डकोटास, टेक्सास वेक्सास जाओ,
तो वो लोग मशीन गन ऐसे ऐसे रखते हैं, ऐसे, ये वाला दे दो, वो वाला दे दो, लेके जा सकते हो वॉलमार्ट से, ठीक है। वो क्या दिखाता है कि बनाया है तो खर्च तो करना पड़ेगा ना कहीं। सो व्हाट दे डिसाइडेड कि चलो ग्रुप बनाते हैं एंड वी नीड टू सॉल्व दिस इश्यू। तो बड़े पापा काम क्या करते हैं, सॉल्व ऑल दिस इश्यू। ये हर एक डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। येमेन, हौथी रिबल्स, ठीक है। येमेन से हमेशा प्रॉब्लम रहती है सऊदी अरेबिया, यूएसए एंड अलाइज। व्हाई? बिकॉज बहुत डिटेल में नहीं जाना है मुझे। येमेन इन अ वे इज सपोर्टेड बाय ईरान। ईरान इज नॉट इन अ गुड टर्म्स विद सऊदी अरेबिया एंड अदर मुस्लिम कंट्रीज। शिया सुन्नी डिफरेंस इज द मेन थिंग, ठीक है। चलो लिखो अभी। मेरे को क्या डायरेक्ट डिटेल पढ़ाना पसंद नहीं है। अभी मेरे को पढ़ाना था आपको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, लेकिन फिर मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि नहीं यूएस जाने वाला है, हouthi पे बम डालेगा। थोड़ा कुछ पता तो होना चाहिए कि चल क्या रहा है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। ये नाम भी इतना अच्छा रखते हैं ना कि ज्वाइन होने की फीलिंग ही आ जाए। प्रॉस्पेरिटी, विकास, प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, देखो कितना अच्छा नाम है। बॉस कौन है इसका? एज यूजुअल यूएसए, ठीक है। इट इज अ मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। यूएस का अच्छा है कि हथियार हम आपको पूरा देंगे, आप सिर्फ अपने लड़के भेजो लड़ने के लिए, ठीक है। मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव अंडर स्ट्रक्चर ऑफ कंबाइंड टास्क फोर्स 153। ये मैं आपको है ना एक बार नेक्स्ट टाइम इसका मैप ला के दिखाऊंगा। रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच में मुझसे शायद गलती हुई थी, मैंने बोला था पहले रेड सी आएगा, नहीं रेड सी बाद में आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो गल्फ है वो पहले आता है, रेड सी उसके बाद। उसके दोनों के बीच में जो रीजन है उसे हम अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। आगे CTF कंबाइंड टास्क फोर्स जो हमने बना वो सेटअप इन 2002। क्योंकि अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि मैंने ये आपको हॉर्मुज क्यों बोला, रेड सी क्यों बोला। टू इम्प्रूव द मैरीटाइम सिक्योरिटी इन रेड सी, मैंने बोला कि नहीं? द मैरीटाइम सिक्योरिटी इन रेड सी, देखो यहाँ पे देखो मेरे सामने रेड सी देखो। चलो हिस्ट्री बता ही देता हूँ, जानोगे अच्छा ही रहेगा। पहले क्या है, ये ब्रिटिश सब आते थे ना, तो उनको बहुत बड़ा पार्टी करके आना पड़ता था। वाई? दे यूज्ड टू कम फ्रॉम ऑल द वे। वो वहां से निकले, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस किया, अटलांटिक घूमे, साउथ अफ्रीका आए, अफ्रीका से होके ऐसे गुजर के कहाँ जाते थे? इंडिया, ठीक है। लेकिन फिर ये लोग बहुत होशियार लोग थे, उन्होंने बोला ये इजिप्ट के पास वाला रीजन है, वहां पे क्या हम कैनाल बना देते हैं। तो बिटवीन इजिप्शियन मेनलैंड एक साइड है और दूसरी साइड इजिप्ट का ही पार्ट है, सिनाई पेनिनसुला। तो उन्होंने उसके बीच में क्या बना दिया? कैनाल बना दिया, जिसे हम क्या कहते हैं आज की डेट में? विच इज द मोस्ट फेमस कैनल? सुएज कैनल। यार इतना तो पता होना, सुएज कैनल। तो अभी आप देखो सुएज कैनल बन गया अफ्रीका के ईस्ट साइड में, तो मुझे अफ्रीका घूम के जाना पड़ेगा? नहीं। अब वो लोग क्या करने लगे? मेडिटेरियन सी में आएंगे, अटलांटिक नहीं जाएंगे, मेडिटेरियन सी से आएंगे। ये सुएज कैनल क्रॉस किया, जैसे सुएज कैनल आपने क्रॉस किया, जो इमीडिएट वाटर बॉडी है उसे हम क्या कहते हैं? रेड सी, ठीक है। फिर रेड सी मैंने बोला अफ्रीका इस साइड है, इजिप्ट इस साइड क्या है? अरेबियन पेनिनसुला। फिर इन दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटी जगह है, इमेजिन कर लो अगर वो बंद कर दे तो पूरा ट्रेड रुक जाएगा। उस जगह को हम क्या कहते हैं? लिखो, बब अल मंदेब। आई एम सॉरी, इट्स अरेबिक नेम, लेकिन लिखना पड़ेगा। बब, वेरी फेमस नेम, बब अल मंदेब एंड गल्फ ऑफ एडन, एंड गल्फ ऑफ एडन। ये 2022 में इसके लिए बनाई गई थी ताकि हम रेड सी, बब अल मंदर एंड गल्फ ऑफ एडन उसको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है, यूएसए अच्छे काम भी करता है, बिकॉज इवन इफ वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप,
लेकिन अगर ये कुछ भी चोक कर दे ना तो हमको भी लेने के देने पड़ जाए, बिकॉज ऑयल यहीं से ही आएगा। सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का